Hello students, I hope you have watched all the previous 3 videos of solid state. Today we will do part 4 of solid states. In this video, we will learn how to calculate number of atoms per unit cell. It is represented by the letter Z. And we will also do some concept related numericals. In the last video we have discussed that we have 7 types of crystal systems. But in 12th we mainly concentrate on cubic lattices. Cubic lattices can be further of 3 types. Mean in cubic lattices we have 3 types of Bravais lattices. First is primitive or simple cubic lattice. Here we have constituent particles or atoms present at the corner of the cube. Then in the second one, apart from the corner, one particle or constituent particle is present at the center of the cube, and this type of lattice is called BCC. And in the third type, apart from the constituent particles at the corner, we have constituent particles at all the 6 faces. Such type of cubic lattice is called FCC. Now we will learn how can we calculate the number of atoms present in one unit cell, that is Z. इसके लिए आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं या कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो याद होने चाहिए. नाउ यू कैन सी अ क्यूब. क्यूब में दिस इज़ अ कॉर्नर. कॉर्नर को वर्टेक्स भी बोलते हैं. एंड इन अ क्यूब वी हैव 8 कॉर्नर्स, वाइल दिस इज़ एन एज. और क्यूब में 12 एजेस होती हैं. एंड यू कैन सी that this portion is known as face of the cube, or cube में we have 6 faces. And if you talk about body diagonals, we have 4 body diagonals in a cube. अब body diagonals क्या होती हैं? अगर आप एक क्यूब में एक कॉर्नर से ऑपोजिट साइड के ऑपोजिट फेस के नीचे वाले कॉर्नर से एक लाइन ड्रॉ करें तो वो कहलाती है बॉडी डायगोनल, बिकॉज दिस डायगोनल रन थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द क्यूब. एंड एज लेंथ को हम रिप्रेजेंट करेंगे लेटर ए से. नाउ वी विल सी द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब. You all are aware that in a crystal lattice we have a large number of unit cells. Unit cells जो हैं they repeat themselves in all the directions to give the complete crystal lattice. Now if you can see a crystal, और इस क्रिस्टल के अगर आप एक किसी यूनिट सेल के कॉर्नर को कंसीडर करें, यहाँ पे मैंने कॉर्नर पे ब्लू कलर से एक एटम रख दिया है. तो आप देख सकते हैं ये जो कॉर्नर है इट इज़ कॉमन टू 8 यूनिट सेल्स. मतलब वन कॉर्नर इज शेयर्ड बिटवीन 8 यूनिट सेल्स. सो इट मीन्स कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम एट द कॉर्नर विल बी 1/8. इसको आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. सपोज यू आर 8 फ्रेंड्स और आपके पास एक चपाती है और आप उस चपाती को इक्वली डिवाइड करते हैं आपस में. तो आपके पास कितना हिस्सा आएगा चपाती का? 1/8, क्योंकि आपने टोटल 8 हिस्सों में से सिर्फ 1 पार्ट लिया है. सो इसी तरह से कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स एट द कॉर्नर विल बी 1/8. Similarly, we will
see the contribution of each atom at the face center. अगर आप फेस सेंटर की बात करें, फेस इज शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल्स. जब 2 यूनिट सेल्स शेयर कर रहे हैं, सो इट मीन्स contribution of each atom on the face center will be 1/2. ये भी सेम एग्जाम्पल आप चपाती का लीजिए कि आपके पास एक चपाती है एंड यू डिवाइड दिस चपाती अमंग 2 फ्रेंड्स. तो एक फ्रेंड को कितना पार्ट मिलेगा? 1/2. नाउ कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम विद इन द बॉडी सेंटर. अगर आप क्यूब में देखेंगे, अगर कोई एटम बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है, इट मीन्स पूरा का पूरा एटम इस क्यूब के अंदर ही फिट है, तो कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा? टोटल 1. बिकॉज बॉडी सेंटर जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा यूनिट सेल शेयर नहीं करते हैं. बॉडी सेंटर इज विद इन द यूनिट सेल. सो कंट्रीब्यूशन of each atom within the body center will be equal to 1. Now we will talk about contribution of each atom on the edge. If you talk about edge, one edge is common to 4 unit cell. एक जो edge है, it is shared by 4 unit cell. तो कंट्रीब्यूशन क्या होगा एज का? 1/4. So we have seen the contribution per atom on a type of lattice point. कॉर्नर पे अगर कोई एटम प्रेजेंट है तो उसका कंट्रीब्यूशन होगा 1/8. फेस सेंटर पे होगा 1/2 कंट्रीब्यूशन. एंड इफ द constituent particle is at the body center, contribution will be 1. And if the constituent particle is present on the edge, then its contribution will be 1/4. Now we will calculate the value of Z, that is number of atoms per unit cell for the 3 types of cubic lattices. पहले हम सिंपल क्यूबिक लैटिस की बात करेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट FCC एंड BCC. तो सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल. तो किसी भी यूनिट सेल को बनाने के 3 तरीके हो सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल. और हमें पता है प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं. तो या तो मैं यूनिट सेल को ड्रॉ कर सकती हूँ एज ओपन स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को मैंने कॉर्नर पे दिखाया है जस्ट बाय 1 पॉइंट. लेकिन अगर आप बात करें, दिस इज़ द स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि ये जो एटम्स होते हैं ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, इनके बीच में गैप नहीं होता है. ओपन स्ट्रक्चर सिर्फ हमारी कन्वीनियंस के लिए बनाया हुआ है. देन एक्चुअली ये होता है स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर. बट अभी हमने बात की थी कि जो एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है तो पूरा एटम एक यूनिट सेल में नहीं आता है. सिर्फ 1/8 हिस्सा एटम का जो कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है, इट इज़ प्रेजेंट विद इन द यूनिट सेल. ये जो थर्ड स्ट्रक्चर बनाया है, दिस इज़ द एक्चुअल पोर्शन ऑफ एटम्स बिलोंगिंग टू 1 यूनिट सेल. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, हमने एटम्स का 1/8 हिस्सा ही बनाया है जो कॉर्नर पे प्रेजेंट है. तो ये इनमें से कोई भी हम मेथड यूज़ कर सकते हैं टू रिप्रेजेंट अ यूनिट सेल. बट ओपन स्ट्रक्चर जो होता है बनाना, ये ज़्यादा कन्वीनियंट होता है. तो अगर आप प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात करें, इसमें हमारे पास 8 एटम्स होते हैं एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब. तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर एटम कॉर्नर पे होगा, देन कंट्रीब्यूशन विल बी 1/8 पर एटम. So number of atoms per unit cell or Z is equal to 8,
क्योंकि 8 एटम्स हैं और हर एक एटम का कंट्रीब्यूशन है 1/8, तो 8 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1/8 से, तो हमारा आंसर आया Z इज इक्वल टू 1। तो प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल के लिए यू मस्ट रिमेंबर Z की वैल्यू 1 होती है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज इक्वल टू 1। In the similar way, we will calculate the value of Z for BCC. BCC mean Body Centered Cubic Unit Cell. तो इसमें आप देख सकते हैं एटम्स जो हैं वो कॉर्नर पे भी प्रेजेंट है, इसके अलावा एक एटम जो है इट इज़ प्रेजेंट विद इन द बॉडी। तो पहला हमने बनाया है ओपन स्ट्रक्चर, ये सिर्फ कन्वीनियंस के लिए बनाया जाता है। दिस इज स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर and this is the actual portion of atoms belonging to one unit cell. In BCC unit cell, we have 8 corner atoms plus 1 atom at the body center. तो अगर आप कॉर्नर की बात करें, कॉर्नर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 पर एटम, और जो एटम बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है उसका कंट्रीब्यूशन रहेगा 1 पर एटम। तो इस कंसेप्ट को अगर हम यूज़ करके नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कैलकुलेट करेंगे फॉर बीसीसी, तो हमारा आंसर आएगा 8, क्योंकि 8 कॉर्नर है, इंटू 1/8, क्योंकि 1/8 जो है इट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर एटम, प्लस 1 एटम एट द बॉडी सेंटर इंटू 1 इसलिए लिखा है क्योंकि कंट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी सेंटर एटम इज 1, सो Z कम आउट टू बी 2। तो BCC यूनिट सेल के लिए आपको याद रखना है Z की वैल्यू 2 होती है, दैट इज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल विल बी 2। इसी तरह से हम फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का भी Z कैलकुलेट करेंगे। तो आप फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के भी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ओपन स्ट्रक्चर भी बना सकती हूँ मैं। एटम्स जो होते हैं FCC में ये कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होते ही हैं, बट एटम्स आर प्रेजेंट एट ऑल द फेसेस ऑल्सो। देन सेकेंड इज स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर, and third is the structure of actual portion of the atoms belonging to one unit cell. तो FCC unit cell में 8 atoms are present at the corner and 6 atoms are present at the face center. जो एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 पर एटम, वाइल जो एटम फेस सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन होता है 1/2 पर एटम। तो अब अगर हम निकालें नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, दैट इज Z, तो हमारा आएगा Z इज इक्वल टू 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2, और इस तरह से Z की वैल्यू आ जाएगी 4। तो FCC के लिए आपको याद रखना है Z की वैल्यू 4 होती है, दैट इज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज इक्वल टू 4 फॉर FCC। नाउ वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Z फॉर N सेंटर यूनिट सेल, बट यहाँ पे आपको एक चीज़ नोट करनी होगी कि if we talk about cubic unit cell, then there is no end centered cubic unit cell. Cubic unit cell सिर्फ 3 ही तरह के होते हैं, सिंपल, BCC एंड FCC। end centered unit cell जो हैं वो या तो ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं या फिर एग्जिस्ट करते हैं मोनोक्लिनिक में। और आप एंड सेंटर यूनिट सेल में देख सकते हैं वी हैव 8 कॉर्नर एटम्स एंड 2 एटम्स आर प्रेजेंट एट 2 ऑल्टरनेट या ऑपोजिट फेसेस। तो इस तरह से अगर आप नंबर ऑफ एटम्स
पर यूनिट सेल कैलकुलेट करेंगे फॉर एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, देन it will be 8 into 1 by 8 plus 2 into 1 by 2 and it comes out to be 2. तो end centered unit cell के लिए Z की वैल्यू 2 आती है. बट यहाँ पे जो चीज़ नोट करनी है वो ये नोट करनी है कि end centered unit cell क्यूबिक सिस्टम में नहीं होता है. या तो ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल लैटिस में मिलेगा या मोनोक्लिनिक क्रिस्टल लैटिस में आपको एंड सेंटर यूनिट सेल मिलते हैं. टिल नाउ वी हैव डन दैट नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, दैट इज Z, इट इज equal to 1 for simple or primitive unit cell. For BCC unit cell, the value of Z is equal to 2 and for FCC, value of Z is equal to 4. Now we will do some numericals. But कभी भी आप numericals करते हैं तो numericals attempt करने से पहले आप हमेशा numericals के क्वेश्चंस को 2 बार ज़रूर रीड करें. और ये जो आज के numericals हैं, इन न्यूमेरिकल्स में आपको बताया जाएगा कि कुछ एटम्स जो हैं वो कॉर्नर पे, कुछ एटम फेसेस पे या एज सेंटर पे प्रेजेंट है यूनिट सेल के, एंड यू हैव टू फाइंड द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड. नाउ द फर्स्ट न्यूमेरिकल, अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स A and B has a cubic structure in which A atoms are at the corner of the cube and B atoms are at the face center. Derive the formula of the compound. आपको मैंने पहले भी कहा था कि न्यूमेरिकल को हमेशा 2 बार रीड कर लें. और अगर आप इस न्यूमेरिकल की बात करें, इसमें ये बोला है कि एक कंपाउंड एलिमेंट A और B से बना है और इसमें एटम जो A हैं दे आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स while atom B are at the face center. अगर अब आप पूछेंगे कि कितने कॉर्नर पे प्रेजेंट हैं, तो अगर यहाँ पे कोई वैल्यू मेंशन नहीं है तो इट मीन्स A atoms are present at all the corners. तो पहले आप गिवन लिखेंगे. So we have A atoms at 8 corners and we have 6 atoms of B at फेस सेंटर. क्योंकि फेसेस कितने होते हैं क्यूब में? 6 फेसेस होते हैं. देन वी विल फाइंड द नंबर ऑफ A एटम्स पर यूनिट सेल. तो नंबर ऑफ A एटम्स पर यूनिट सेल आएंगे 8 इंटू 1 बाई 8. क्योंकि कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है? 1 बाई 8. इसलिए हमने इसे 1 बाई 8 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो नंबर ऑफ A एटम्स पर यूनिट सेल आए 1. And for B, number of atoms per unit cell will be 6 faces है, तो 6 into 1 by 2. क्योंकि फेस का कंट्रीब्यूशन होता है 1 by 2. तो नंबर ऑफ B एटम्स कितने आए? इट कम्स आउट टू बी 3 पर यूनिट सेल. तो बाद में आप इन दोनों का रेशो लिखेंगे A/B. सो इट विल बी 1/3. तो आपका फॉर्मूला आएगा AB3. हमें सिंपलेस्ट रेशो निकालना है और फिर सिंपलेस्ट रेशो के हिसाब से वी हैव टू राइट द फॉर्मूला. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स X and Y crystallizes in the cubic structure where Y atoms are at the corner of the cube and X atoms are at the alternate faces. What is the formula of the compound? तो इस क्वेश्चन को भी आप 2 बार पढ़ेंगे. आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन ट्वाइस आप गिवन लिखेंगे. तो यहाँ पे गिवन है कि Y atoms are present at the corners. So हम लिखेंगे Y are present at 8 corners while X atoms are at the alternate faces. किसी भी क्यूब में
सिर्फ दो ही ऑल्टरनेट या ऑपोजिट फेसेस होते हैं। तो इसके लिए आप एग्जाम्पल ले सकते हैं अपने ही रूम का। जिस रूम में आप बैठे हैं उसकी जो छत है या जो सीलिंग है उसको आप एक फेस मानिए, तो उसके ऑपोजिट कौन सा फेस आएगा? जो फ्लोर है वो वाला फेस ऑपोजिट होगा। बाकी जो चारों फेसेस हैं दे विल बी एडजेसेंट टू द सीलिंग। तो इस तरह से एक क्यूब में वी हैव ओनली टू ऑल्टरनेट या ऑपोजिट फेसेस। सो x atoms are present at two faces which are alternate to each other. तो इस तरह से नंबर ऑफ y atoms पर यूनिट सेल आया 8 इंटू 1/8। 1/8 इसलिए लिखा बिकॉज कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/8। सो नंबर ऑफ y atoms पर यूनिट सेल आया 1। इसी तरह से हमने x के लिए भी निकाल लिया नंबर ऑफ x एटम्स पर यूनिट सेल। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2। 1/2 इसलिए लिखा बिकॉज फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2। सो नंबर ऑफ x एटम्स पर यूनिट सेल आए 1। अब हम दोनों के नंबर का रेशो निकाल लेंगे। सो x रेशो y इज इक्वल टू 1:1 and formula will be xy. Another type of numerical which usually come is calculate the approximate number of unit cells present in 1 gram of gold. Given that gold crystallizes in the face-centered cubic lattice, atomic mass of gold is 197 U. इस तरह के न्यूमेरिकल्स में आपको एलिमेंट का मास दिया जाएगा और आपको नंबर ऑफ यूनिट सेल्स निकालने होंगे इन दैट गिवन मास। फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल यू रिक्वायर द वैल्यू ऑफ z, और z की वैल्यू के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्रिस्टल लैटिस है, वेदर it is simple crystal lattice, BCC और FCC। इस क्वेश्चन में गोल्ड एलिमेंट दिया हुआ है और ये बोला गया है कि गोल्ड क्रिस्टलाइजेज इन द FCC लैटिस। तो पहले हम गिवन लिखेंगे। गोल्ड FCC लैटिस बनाता है इसलिए इसके लिए Z की वैल्यू विल बी 4। मीन नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल विल बी 4। अब हम मोल कंसेप्ट अप्लाई करके निकालेंगे कि 1 ग्राम गोल्ड में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। तो अगर आप मोल कंसेप्ट देखें तो यू विल फाइंड कि 1 मोल गोल्ड में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं और इसका मास 197 ग्राम के इक्वल होता है। इट मीन्स अगर हम कहें 196 ग्राम में हमारे पास कितने एटम होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। इट मीन्स 1 ग्राम ऑफ गोल्ड will contain 6.022 into 10⁻23 divide by 197 एटम्स। तो ये जो एटम्स हैं ये 1 ग्राम गोल्ड में प्रेजेंट है जो हमें गिवन है। इन केस हमें क्वेश्चन में पूछा जाता कि 10 ग्राम गोल्ड में कितने एटम हैं तो हम 10 ग्राम में निकाल लेते कि कितने एटम्स हैं, बट यहाँ पे क्वेश्चन में 1 ग्राम गोल्ड बोला है तो हमने 1 ग्राम गोल्ड में निकाल लिए हैं कि हमारे पास एटम है 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 197। देन अगर आप Z देखें इट इज़ इक्वल टू 4 फॉर गोल्ड और Z 4 का मतलब है 4 एटम्स इन 1 यूनिट सेल। तो एक एटम में कितने यूनिट सेल होंगे 1/4 यूनिट सेल। देन 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 197 atoms contain how many unit cell
1/4 into 6.22 into 10 to the power 23 divide by 197 यूनिट सेल. तो इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे. आंसर विल बी 7.64 इंटू 10 टू दी पावर 20 यूनिट सेल. आप इस क्वेश्चन को एक सिंपल फॉर्मूले से भी कर सकते हैं. तो फॉर्मूला अगर आप डायरेक्ट यूज़ करेंगे देन इट विल बी नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इज इक्वल टू Na स्मॉल m डिवाइड बाय Z इंटू कैपिटल M. यहाँ पे Na का मतलब है एवोगैड्रो नंबर विच इज़ 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23. स्मॉल m का मतलब है गिवन मास, वो मास जिसमें आपको यूनिट सेल निकालने हैं. और Z जो है उसकी वैल्यू डिपेंड करती है क्रिस्टल लैटिस के ऊपर. अगर सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट लैटिस है तो Z की वैल्यू 1 होगी, BCC के लिए Z की वैल्यू 2 होगी, FCC के लिए इट विल बी 4. और कैपिटल M का मतलब है मोलर मास. तो इस तरह से आप नंबर ऑफ यूनिट सेल्स निकाल सकते हैं. नाउ आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल. A compound formed by elements A and B crystallizes in the cubic structure. A atoms are present on the corners as well as the face center, whereas B atoms are present on the edge centers as well as body center. What is the formula of the compound? First, you will write the given. A एटम जो हैं वो 8 कॉर्नर पे प्रेजेंट हैं प्लस एट 6 फेस सेंटर्स, एंड B एटम्स आर प्रेजेंट एट 12 एजेस प्लस 1 बॉडी सेंटर. अब हम नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे पर यूनिट सेल. तो पहले A का निकालेंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ A पर यूनिट सेल. इट केम्स आउट टू बी 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2. And it comes out to be 4. Then number of B atoms per unit cell is equal to 12 into 1/4. 1/4 इसलिए लिया है because H का contribution होता है 1/4 पर एटम प्लस 1 into 1 और हमारा आंसर आया 4. इस तरह से A और B का रेशो आया 4:4 और सिंपल रेशो आया 1:1. सो फॉर्मूला विल बी AB. नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल. A unit cell consists of a cube in which there are A atoms at the corner and B atoms at the face centers, and A atoms are missing from 2 corners in each unit cell. What is the simplest formula of the compound? इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि A atoms कॉर्नर पे प्रेजेंट हैं while B atoms are present at the face center. बट साथ ही साथ एक कंडीशन दी गई है कि A atoms are missing from 2 corners in a unit cell. जैसा कि हमें पता है एक यूनिट सेल में कितने कॉर्नर होते हैं टोटल 8, लेकिन जो A एटम्स हैं वो 2 कॉर्नर में से मिसिंग है. इट मीन्स A कितने हो गए? A आर प्रेजेंट एट ओनली 6 कॉर्नर आउट ऑफ 8 बिकॉज 2 पे A प्रेजेंट नहीं है एंड B is present at 6 face center. So number of A atoms per unit cell will be 6 into 1/8 and number of A per unit cell will come out to be 3/4 and number of B atoms per unit cell will be equal to 6 into 1/2 और वैल्यू आ गई 3. तो A रेशो B आया 3/4 रेशो 3. नाउ वी विल फाइंड द सिंपलेस्ट रेशो और सिंपलेस्ट रेशो आया हमारा 1:4 एंड अकॉर्डिंग टू दिस आवर फॉर्मूला विल बी AB4. नाउ आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल.
In a phase center lattice of X and Y, X atoms are present at the corners while Y atoms are present at the phase center. इसमें क्वेश्चन 1 पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, और क्वेश्चन 2 में पूछ रहा है व्हाट वुड बी द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इफ़। यहाँ पे क्वेश्चन 2 में 3 अलग अलग कंडीशन दे रखी हैं। पहली कंडीशन है वन ऑफ द X atom is missing from the corner in each unit cell. In second condition, if two atoms of X are missing from a corner in each unit cell. And third condition is if one of the X atoms from a corner is replaced by Z atoms. हम क्वेश्चन जो 2 है और उसके तीनों पार्ट्स बाद में करेंगे, पहले हम क्वेश्चन 1 करते हैं। क्वेश्चन 1 में बोला गया है X atoms are present at 8 corners while Y atoms are present at 6 phase centers. So number of X atoms per unit cell is equal to 8 into 1 by 8, that is 1. While number of Y atoms per unit cell is equal to 6 into 1 by 2, that is 3. Now we will find the ratio of X and Y. So X is to Y is 1 is to 3. So our formula is XY3. Now next part of the numerical. What would be the formula of the compound if one of the X atoms is missing from a corner in each unit cell? Second, 2 atoms of X are missing from a corner in each unit cell. And third one is if one of the X atoms from a corner is replaced by Z atoms. तो इस क्वेश्चन को भी हम उसी तरह से करेंगे। तो पहले हम इसका फर्स्ट पॉइंट करेंगे व्हेन वन ऑफ X atom is missing from the corner in each unit cell. बिकॉज इन्होंने y की बात नहीं की, इट मीन्स y पहले जितने थे अभी भी उतने हैं, बट 1x इज मिसिंग. सो x विल बी प्रेजेंट एट 7 corners and y atoms are present at 6 faces. So number of x and y per unit cell will came out to be, x के लिए वैल्यू आएगी 7/8 and y के लिए आएगी 3. तो और x और y का रेशो कितना आएगा 7/8 रेशो 3. इसको अब हम सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट करेंगे, देन इट विल कम आउट टू बी 7/24 एंड फॉर्मूला विल बी x7y24. तो अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे व्हेन 2 atoms ऑफ x आर मिसिंग फ्रॉम द कॉर्नर. अब 2 एटम मिसिंग है कॉर्नर में, इसका मतलब x कितने हैं, x आर 6 एट द कॉर्नर्स while y remain the same, they are present at 6 faces. फिर हम x और y एटम्स निकाल लेंगे पर यूनिट सेल. तो x आ जाएगा 3/4 and y comes out to be 3. Now we will find the ratio of x and y. और x और y एटम्स का रेशो आ जाएगा 3/4 रेशो 3 मीन 1/4. सो फॉर्मूला आएगा XY4. इसी तरह से हम इसका थर्ड पार्ट भी करेंगे. थर्ड पार्ट में बोला गया है कि वन ऑफ द x एटम्स फ्रॉम अ कॉर्नर इज रिप्लेस्ड बाय z एटम. मी कॉर्नर के 8 एटम में से एक x एटम को रिप्लेस कर दिया गया है z से. तो इसका मतलब x कितने हो गए 7 एट द कॉर्नर्स, y आर प्रेजेंट एट 6 फेसेस, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एटम ऐड हो गया है z विच इज़ प्रेजेंट एट वन ऑफ द कॉर्नर. तो 1 कॉर्नर. तो इस तरह से हमने नंबर ऑफ x, y एंड z निकाले पर यूनिट एटम. तो x की वैल्यू आ गई 7/8, y की वैल्यू आई 3 एंड z की वैल्यू आई
1/8। तो हमने इन तीनों का रेशो निकाला, तो रेशो आया 7/8, रेशो 3, रेशो 1/8। देन इसको सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट किया, देन इट कम्स आउट टू बी 7:24:1। इस तरह से हमारा फॉर्मूला आया x7 y24 z। Now I'll give you few numericals for practice. First is, if three elements P, Q, R crystallizes in a cubic solid lattice with P atoms at the corners, Q atoms at the cubic center and R atoms at the center of the faces of the cube, then write the formula of the compound. Answer will be PQR3. Now next question. Calculate the number of atoms in a cubic based unit cell having one atom on each corner and two atoms on each body diagonals. तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है, you have to find out number of atoms in a cubic unit cell. मीन आपको z की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे हिंट ये है कि जो भी एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा उसका कंट्रीब्यूशन होगा 1/8 पर एटम। एंड सेकेंड हिंट कि किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल में वी हैव 4 बॉडी डायगोनल्स और बॉडी डायगोनल का कंट्रीब्यूशन होता है 1 पर एटम। द नेक्स्ट क्वेश्चन, potassium crystallizes in a BCC lattice. Calculate the approximate number of unit cells present in 2 gram of potassium. Atomic mass of potassium is 39 U. तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 1.54 इंटू 10⁻22। ये सेम वैसा क्वेश्चन है जैसा अभी हमने गोल्ड का किया था। वहाँ पे 1 ग्राम गोल्ड में यूनिट सेल्स निकालने थे, बट यहाँ पे पोटेशियम है और पोटेशियम 2 ग्राम दिया हुआ है, इसमें आपको नंबर ऑफ यूनिट सेल्स निकालने हैं और पोटेशियम जो है इसका BCC लैटिस है, मतलब यहाँ पे Z की वैल्यू 2 लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a solid has a structure in which W atoms are present at the corner of the cubic unit cell. O atoms are located at the cube edges and Na atoms are present at cube centers. What is the formula of the compound? तो आंसर आएगा NaWO3। Next question, tungsten crystallizes in body centered cubic lattice. Calculate the number of unit cells in 1.5 gram of tungsten. Atomic mass of tungsten is 184 U. ये आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आएगा 2.45 इंटू 10⁻21 यूनिट सेल्स। Now next question, sodium crystallizes in a BCC unit cell. Calculate the approximate number of unit cells in 9.2 gram of sodium. Atomic mass of sodium is equal to 23 U. And answer will be 1.2044 into 10⁻23 unit cells. आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल।